Rohit sir, can you go ahead? Yes, yes, for sure. Hello, Hello, Rajkiran. hello, Rohit. Hello, good afternoon. I am waiting for you for a long time here. Yes, okay. Oh, I'm really sorry actually. Good Okay, okay, afternoon, no problem. everyone. So, shall I start, Rohit? Wait a minute. So, good afternoon, everyone. So, POAPG student chapter starts Geo Custom, and we had first meeting of our from professional side that is from Professor Somajit Mukherjee, and now this meeting is from budding geoscientists. So Rajkiran Dhiman, as you know already, MSc research student, final year student, and he is working on landslides, rock stability, etc. So I guess surely you will gain knowledge from him on rock mass classification and listen him carefully and ask your queries after his presentation. So Rajkiran, you can start now. Okay. Thank you. Is my screen visible to all, Rohit? Yes, yes, it is visible to me and I hope it is visible to all of them also. Actually, okay, thank you. Actually, the problem is my laptop was not working here, na? So I'm sharing this video on Rockmass rating. Uh, there was a problem of connection, so I could not connect my presentation, which I prepared for this particular lecture. Na? So I will be talking about the Rockmass rating from this particular video, which is by Dr. Mohit Punia. See, first of all, I want to make sure that this particular method of rock mass rating, it was developed in the early stages of 1970s by Beniowski. So, see, I'm not an expert on this particular method. What I'm going to talk about today is through my experiences, what I have learned about this method, and in the field work also, I will be sharing my experience. So, I'm not expert, but yeah, I will share my experience and how I was able to learn about this method and what are its how it is practiced in the field and what are its applications for future from the job perspective. So, first of all, we need to understand what is rock mass. So, it is very difficult for me right now actually because I'm using this video. I have already prepared a very this presentation. I'm trying to connect on the other laptop. So, I want you all to, if you all can wait for just 2 minutes because I'm connecting on other laptop. Na? So that will make very clear that how this rock mass rating classification will go further. Okay, I'm connected on the other laptop. So just wait for 1 minute. Okay, I'm about to connect. Rohit, is my screen visible now? Yes, yes. Okay. Sorry everyone, actually sorry for this inconvenience. Actually I am in Kullu. There were so many problems today about network and everything. So I'm really sorry for all this delay.
Okay, so we will start immediately. So, see, first of all, I want to ask all the, if there are people from BSc and everybody, to look at this picture in the background, and can you explain me what type of geomorphological landform are you looking at? Can you please tell me what is this geomorphological landform you are looking at in the background? Can anybody tell me? Okay, let me tell you. It's okay. So basically, you are looking at a valley. I think you all have studied about geomorphological landform, erosional landforms in geomorphology. So this is a valley, a beautiful valley of Kulu. So I just want to start from this picture. Why? Because I want to start with the motivation that how beautiful geology is, and when you look at these kind of valleys and all other geomorphological landforms, like I ask first question that how these geomorphological landforms are formed and what are the processes, how they are formed and developed. So we study in theoretically in class, but we are actually not aware of how actually these are formed. So when you go to field or when you see from a different angle, from a different angle you are looking at these geomorphological landforms. So you should ask the first question that how these must have formed and what must be the processes which led to formation of these valleys and other mountains. So this is how I'm going to start today my lecture. So there is this quotation: if you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about. Lord Kelvin said this. So this quotation will be my base quotation for today for understanding rock mass rating. So what is this quotation saying is that if you are speaking about something and you are expressing it in numbers, it means you know something about it. So rock mass rating is everything about this quotation, because when we look at rock mass, we are trying to define a particular number that will express the rock mass quality. Okay, so जैसे हम पढ़ते हैं, हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उसको डिफाइन करते हैं ना क्लासेस में कि हाँ जी इसको इतने नंबर देंगे, इसको इतने नंबर देंगे, और एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं हम लोग। जैसे हम क्वार्ट्स वो फेल्डस्पार की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इतना परसेंट वो ऐसे ऐसे करके डिफाइन करते हैं। तो रॉक मास रेटिंग में भी दिस इज हाउ इट वर्क्स, वी डिफाइन एवरीथिंग बाय नंबर्स। ओके, सो व्हाट इज अ इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट? Engineering geologist is made with the two terms, engineer and a geologist. Engineers, you all already know that engineers, they work on the basis of numbers. They calculate things, they try to understand everything quantitatively. That is, they always use a number to define something. And who is a geologist? We observe things. We observe and we make maps and we try to understand what must be the processes that led to formation of something. And if you combine an engineering point of view and a geological point of view, that is called as an engineering geologist. So rock mass rating is a method which is used by engineering geologists. Okay, so this is how we are going to. So what are the methods of engineering geological mapping? So see, there are broadly two approaches. One is conventional approach and the other one is numerical methods. Okay, conventional methods वो मेथड होंगे जो बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत सालों से यूज हो रहे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल मेथड्स वो होते हैं जो प्रोसेस बेस्ड होते हैं। प्रोसेस बेस्ड कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही होगी, particularly physics based होते हैं ये numerical methods. Okay, so what are the processes behind these? So you will try to understand the actual science in numerical methods. But in case of conventional methods, what happens is that you already have done some testing or some other stuff like to understand rock mass. There are so many methods for testing the strength and other parameters for rock mass. So you have data which is collected over the years, like for 60-70 years engineering geologists are working in this field. So they have a lot of data. So what they do is they use these empirical methods. Empirical methods, they try to make a correlation between what the data is giving them the value and what must be the RMR value of the particular method they are using. So it is basically a correlation based method. इसमें ये रहता है कि आपका जो काम होता है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि जब आप इंपेरिकल मेथड बनाते हैं वो एक ब्रॉडली एक्सप्लेन करता है किसी चीज को, लेकिन हाँ उसमें जो है प्रोसेस बेस्ड चीजें नहीं होती है। जैसे उसमें प्योर साइंस का अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वो नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो सिर्फ डेटा के बेस पे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं बहुत सारे मेथड्स, काइनेमेटिक मेथड्स, इंपेरिकल मेथड्स, लिमिट इक्विलिब्रियम और प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ इंपेरिकल मेथड्स की, जो मैंने बताया आपको कोरिलेशन के बेस पे जो बनते हैं, ठीक है। उसमें रहता है बहुत सारे मेथड्स है रॉक मास क्लासिफिकेशन के, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करेंगे रॉक मास रेटिंग ओनली। सो to understand rock mass rating classification system, first of all we need to understand what is rock mass. So rock mass क्या है ना, हम क्यों रॉक मास पे काम कर रहे हैं और उससे क्यों हमने इसको रॉक मास बोला है, तो वो समझने की कोशिश करेंगे हम। तो ये है उसकी डेफिनेशन, जो बहुत ही बड़ी और बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही होगी सबको कि क्या लिख दिया इसमें, बट ये बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इसको हम तोड़ के समझेंगे।
देखो रॉक क्या होता है, व्हाट इज रॉक? रॉक इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, हम सबको पता है ये चीज, ठीक है। और व्हाट इज रॉक मास? रॉक मास इज अ रॉक विद डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट। अब रॉक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि छोटा सैंपल ऑफ रॉक उठा लूं मैं। रॉक एक बड़ी सी रॉक है, किसी जगह का आउटक्रॉप देख लिया आपने, विच हैज सो मेनी डिसकंटिन्यूटीज, एंड डिसकंटिन्यूटीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉल्ट्स, जॉइंट्स, बहुत कुछ हो सकता है, शियर जोन्स हो सकते हैं, है ना, कोई वीन आ गई बीच में, कोई डाइक्स आ गए, वो सब इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी माने जाते हैं। तो जब ये सारी चीजें किसी रॉक के अंदर प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है रॉक मास, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊंगा एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दैट। इज दिस अ रॉक मास? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू एवरीबॉडी। ये रॉक मास है या नहीं है? तो जैसे कि जो रॉक मास की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, वो होता है रॉक विद लॉट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक ही तरह का रॉक दिख रहा है आपको हर जगह फैला हुआ, ठीक है। ये इसको हम रॉक मास नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि सेम टाइप ऑफ रॉक यू आर गेटिंग एवरीवेयर, इंटेक्ट रॉक प्रॉपर्ली आपको मिल रहा है हर जगह। तो जो रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू दीज काइंड ऑफ आउटक्रॉप्स, ओके। So no rock mass classification is valid for this type of rock or outcrop. And you are looking at this picture, okay, so this is a rock mass or not? Yes, this is a rock mass. Why? Because see, you can see a proper outcrop and there are a lot of discontinuities. Wait, let me. I think you can see now. See, there are so many discontinuities, right? So there are so many discontinuities present. So you will call it a rock mass, and rock mass rating classification will be valid for this type of outcrop when you see in the field. This is also a rock crop. So what is this? This is also a jointed rock mass. See this picture. They are all rock mass. So you can apply rock mass rating to this type of outcrops when you see in the field. Okay, the very important question that you must have asked me is, why do we need rock mass classification system? What is its purpose? Why engineering geologists need to develop this kind of rock mass rating system? So to understand this, I will show you the picture again. And okay, so what I'm trying to say here is that by this red box, suppose you have to make a tunnel through this process, this particular red window here. So you have to make a tunnel through this, or you can say you have to stabilize this slope. So what will be the things that will come to your mind first of all? So you have to ask this question to yourself. This is the question which all engineering geologists asked in the past, and on the basis of that, they have developed some criteria, or you can say some factors, which will govern the rock mass classification systems. Okay. So first of all, what are the factors that control the stability of a jointed rock mass? See, this is a simple answer. There are very few factors that govern. These all are the broad parameters. Okay. First is the block size and the shape. What will be the block size and what will be its shape? Second is shear strength of the weakness planes. Weakness planes means all these joints and other discontinuities. What is the confining stress? अगर हम अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं इस रॉक मास को, तो इस टाइम पे इस ऊपर जितना भी आउटक्रॉप का मास है, इसका कन्फाइनिंग स्ट्रेस कितना लग रहा है इस जगह पे, वो उसकी क्या वैल्यू है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे? एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ग्राउंड वाटर की कंडीशन क्या है, वहां पे कोई ड्रेनेज फ्लो तो नहीं कर रही है, वो सब चीजें आती है इसमें, ठीक है। तो मोटे मोटे से ये चार जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं के बेस पे जो है रॉक मास क्लासिफिकेशंस डिस्क्राइब किए जाते हैं। और रॉक मास रेटिंग सिस्टम्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रॉक मास रेटिंग, बिकॉज जो रॉक मास रेटिंग है बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है, और उसके अंदर काफी हद तक जो है ये सारे पैरामीटर्स को अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। मतलब डेटा बहुत ज्यादा था लोगों के पास उसका, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो ज्यादा बढ़ जाती है फिर, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट डिफाइंस द साइज ऑफ अ रॉक ब्लॉक्स इन ए जॉइंटेड रॉक मास? उसका रॉक मास है जॉइंटेड रॉक मास, उसके जो रॉक ब्लॉक्स होते हैं उसके साइज को कौन डिफाइन करेगा? तो वही बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट स्पेसिंग, कितने जॉइंट्स प्रेजेंट है उस रॉक मास के अंदर और उनकी बीच की स्पेसिंग कितनी है, ठीक है। तो अगर इस पिक्चर को दोबारा देखें ना, तो इसमें हम ये देखेंगे कि अगर इस तरह का एक जॉइंटेड रॉक मास में यहाँ देख रहा हूँ, ऐसे एक जॉइंट जा रहा है, तो इसके बीच की ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? ये अभी मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यू हैव टू डू वेरी केयरफुली दिस थिंग इन द रियल टाइम फील्ड वर्क। ओके, सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पेसिंग बिटवीन जॉइंटेड रॉक मास। The next question that is very important to ask is, what is the strength of joints in a jointed rock mass? इनकी क्या स्ट्रेंथ है अपनी?
उसको डिफाइन क्या करेगा? अब आप खुद सोचो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होता है, जब हम वो काम नहीं करते हैं वो इंक्लाइन प्लेन वाला, हमने कोई बॉक्स रख दिया इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो बॉक्स कब गिरेगा, उस बॉक्स पे कितनी ग्रेविटी लग रही है नीचे को, तो वो उसका शेयर कंपोनेंट कितनी फोर्स लगा रहा है, तो यही सब चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है इसमें भी। तो उनको उस ब्लॉक को उस इंक्लाइंड प्लेन से मूव करने से कौन कौन सी चीजें रोकेंगी? वो होती है रफनेस क्या है उसकी, प्लेनिटी कितनी है, वो कितना प्लेन है, जॉइंट सरफेस ऑल्टरेशन तो नहीं हो गई है उसकी, कहीं वेदर्ड तो नहीं है वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। अगर उन जॉइंट्स के बीच में कोई इनफीलिंग प्रेजेंट है, या क्ले है, या कुछ ऐसा मटेरियल है जो उसको इजीली मूव करने में हेल्प करेगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। सेपरेशन कितनी है उनके बीच में, ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी आपको। और व्हाट आर द स्ट्रेस कंट्रोल्स ऑन ए जॉइंटेड रॉक मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि वहां का इन सिटू स्ट्रेस कितना है। इसमें 4 चीजें आती है। इन सिटू स्ट्रेस होता है जो ऑलरेडी रॉक मास में आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर वहां पर जो स्ट्रेस लग रहा है उस जगह पे। क्या होता है कि जब जैसे आप हिमालयाज की बात करोगे ना, तो हिमालयाज में ओरोजनी की वजह से ना हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेस होता है ऑलरेडी डिफाइंड होता है हर जगह का। अगर मैं कुल्लू की बात करूं, तो मुझे यहाँ का कोई आउटक्रॉप स्टडी करना है या टनल बनानी है किसी माउंटेन के अंदर, तो मेरे को वहाँ का हॉरिजॉन्टल इन सिटू स्ट्रेस पता होना चाहिए पहले से कितना है वहाँ पे, और वो ना ऑलरेडी डिफाइंड होता है, तो वो हमें मैप में मिल जाता है उसका वैल्यू। दूसरा होता है इंड्यूस्ड स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या होता है? अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सकेवेशन हो चुकी है, ठीक है, ये देखो इतना मास यहाँ से निकाल दिया नीचे से जब रोड बन रहा था, उसके कारण क्या हुआ कि जो इक्विलिब्रियम था वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये जो मास था ये पहले स्टेबल था, लेकिन काटने की वजह से ऊपर वाला मास हैंगिंग में आ गया। इसकी वजह से इस रॉक मास को क्या है कि जो इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं कहीं पे डिफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, तो कहीं पे ब्लॉक्स गिरेंगे या ये अनस्टेबल हो जाएगा ये रॉक मास, ठीक है। अभी यहाँ से नहीं गिर रहा है क्योंकि इसने किसी न किसी तरीके से स्टेबलाइज कर दिया है अपनी उसको, जो डिसइक्विलिब्रियम आया था, बट हो सकता है जब एक्सटर्नल फैक्टर्स बढ़े हैं, किसी टाइम पानी आए या कुछ हो, तो ये गिर सकता है। इस तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है। और अगली चीज आती है ये वाटर प्रेशर, जो मैंने अभी बात किया। और डायनामिक स्ट्रेसेस में आते हैं दूसरी चीजें, जैसे कि कोई अर्थक्वेक की वजह से या कुछ भी दूसरी ऐसी चीजें जो डायनामिकली आएंगी, जो स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हाउ रॉक मास क्लासिफिकेशन वर्क्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये इसमें क्या रहता है कि हम लोग क्या करते हैं जब हम कोई आउटक्रॉप देखते हैं, व्हेन वी आर लुकिंग एट आउटक्रॉप, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आउटक्रॉप एंड वी ट्राई टू ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल 4-5 फैक्टर्स एंड वी ट्राई टू गिव इट अ नंबर। रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम का सिंपल सा यही काम है, ये रॉक मास को देखेगा, अपने फैक्टर्स को लगाएगा और उसके बाद उसको एक पर्टिकुलर नंबर दे देगा। और उस नंबर को कौन यूज करेगा? एक सिविल इंजीनियर बाद में, जब वो वहां पे कुछ बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, टनल बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला किसी काम रहता है जियोलॉजिस्ट का, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट का, टू बी वेरी स्पेसिफिक। See, there are so many history of rock mass classification systems that are available. So what I have done is I have mentioned this particular link. I will share this presentation with you all. So you can visit this rock science website and you can find a lot of rock mass classification systems over the past years that have developed, है ना, आज तक। तो वो सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अभी, बट मैं आपको आरएमआर समझा रहा हूँ आज, जो वन ऑफ द वो है रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट यू कैन ऑलवेज स्टडी ऑल दीज अदर scientists who have developed other rock mass classification systems which are available in the free domain of rock science website, so you can visit this website. Rock mass rating system was developed by Beniowski in 1973, ठीक है। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंट ईयर्स के साथ ये क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम लोग इंपेरिकल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, तो इंपेरिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो डेटा है ना किसी भी चीज का, वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ। जो जितना ज्यादा डेटा बढ़ेगा, तो हो सकता है आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो मेथड का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाए, है ना, क्योंकि कोरिलेशन बदलते जाते हैं टाइम के साथ। तो कोरिलेशन के अंदर जो वैल्यूज होंगी किसी पर्टिकुलर पैरामीटर की, हम आगे स्टडी करेंगे, जो ये 6 पैरामीटर्स हैं, वो वैल्यूज जो है वो चेंज करती जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड कंडीशंस ऑफ द पर्टिकुलर टनल्स और स्लोप्स दैट हैव बीन स्टडीड थ्रू द ईयर्स, ठीक है। तो उनके बेस पे ये जो रॉक मास रेटिंग सिस्टम है, 1973 में पहली बार बना था, उसके बाद 79 और 89 तक ये डेवलप हुआ था, ठीक है। तो आजकल ये 2014 में भी डेवलप हो चुका है आरएमआर का सिस्टम, बट हम लोग फिर भी 1989 वाला फॉलो करते हैं जनरली अभी। इसके अंदर 6 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, स्पेसिंग है, कंडीशन, ग्राउंड वाटर और जॉइंट ओरिएंटेशन। सबसे पहले ये यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक है, ठीक है, उस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं ऊपर से कोई फोर्स लगाऊंगा ना स्ट्रेस की, तो ये ब्लॉक्स कब टूटेगा, ठीक है, वो यूसीएस बताता है। यूसीएस का मतलब है यूनिएक्सियल, एक ही दिशा में दे रहे हैं हम लोग फोर्सेस को, ठीक है, एक ही दिशा में दे रहे हैं फोर्सेस को। अगर हम ट्राइएक्सियल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ना पहले से प्री डिफाइंड कंडीशंस लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की भी, लेकिन इसमें वो नहीं कंसीडर किया गया है। तो यूसीएस की वैल्यू निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो ये मशीन है यूसीएस मशीन, ठीक है। दूसरा पॉइंट लोड एक मेथड होता है, और एक रिलेटिव मेथड भी होता था, शुरू में होता था वो,
ये वाली जो मैंने स्लाइड्स जितनी यूज की है मैंने डॉक्टर मोहित कुमार पुनिया की वीडियो से ली हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को भी, क्योंकि इस चैनल पे आपको ना कि खाली आरएमआर के बारे में पता चलेगा बट आपको जियोलॉजी के बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आप प्लीज इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर आपने कुछ और भी समझना है चीजों के बारे में जियो टेक्निकल परस्पेक्टिव से खास करके, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हमने देखा, यहाँ मैं आपको इस फिगर को दिखाऊंगा, ये एक फिगर है। ठीक है, इस फिगर में आप लोग देखोगे तो बेसॉल्ट जो है ये सबसे ऊपर देखो, यहाँ पे बेसॉल्ट, इसकी जो यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है, 250 से भी ज्यादा है। इसी तरीके से सैंडस्टोन यहाँ पे है, सैंडस्टोन की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है 25 कुछ। तो हमें पूरा क्लियरली पता चल गया कि जो रॉक, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो जनरली उनकी कम रहेंगी, है ना, हमें पता भी है मिनरोलॉजिकली भी, बट वी विल नॉट गो देयर टू अंडरस्टैंड, सिंपली वी विल से कि हाँ भाई जैसे सैंडस्टोन से ऊपर जा रहा है मेटामॉर्फिज्म, दूसरी रॉक्स आ रही हैं ऊपर ऊपर को, जैसे हम इग्नियस रॉक्स की तरफ जा रहे हैं तो जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाती है। मोटा सा आइडिया हमें ये लग गया यहाँ से, बट वी कैन स्टडी इन डिटेल एवरीथिंग, दैट इज ऑलवेज एज फॉर स्टडी, ओके, यू कैन स्टडी इन ऑल रिसर्च पेपर्स और बुक्स। तो ये जब हम ये स्टडी करते थे, इनकी टेस्टिंग जब हमने की तो हमने देखा कि इनकी जो स्ट्रेंथ है उसकी एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, उस वैल्यू के बेस में हमने क्लासीफाई कर दी रेटिंग। जैसे एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग 250 से ज्यादा बेसॉल्ट आएगा यहाँ पे, तो उसकी रेटिंग 15 दे दी हमने। वेरी स्ट्रॉन्ग 100 से 250 उसकी 12 दे दी, स्ट्रॉन्ग 50 से 100 उसकी 7 दे दी। इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया इसको, यूसीएस को। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन कैसे की हमने और ये रेटिंग क्यों दी है, ये वाली रेटिंग पर्टिकुलरली, तो ये इसलिए दी क्योंकि हमने क्या किया है कि टनलिंग की स्टडी की है, किसी जगह पे टनलिंग बनाने के लिए वहां पर रॉक मास की स्टडी की, तो उसके हिसाब से हमें ये वाली वैल्यू वहां पर फिट बैठ रही थी। और ऐसा नहीं कि एक जगह का, वो बहुत सारा डेटा था, उसके बेस पे ये वाली वैल्यू अच्छे से डिफाइन कर रही थी उस पर्टिकुलर रॉक टाइप को। तो हमने इसलिए 15, 12, 7 ऐसे करके रेटिंग दी है। जो एक्सट्रीमली वीक है, जैसे सॉइल आती है इसमें, उसकी 0 रेटिंग है, वो एकदम से उसका कोई स्ट्रेंथ हैंडलिंग की कैपेसिटी नहीं है, वो एकदम से गिर जाएगा। समझ रहे हो, इस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं इसको, यूसीएस को। तो ये यूसीएस का दूसरा मेथड है पॉइंट लोड टेस्ट। इसमें हम छोटे छोटे ब्लॉक लेते हैं उस जगह से और उसमें पॉइंट लोड निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट लोड टेस्ट एक मशीन होती है, उसको यूज करना पड़ता है और उसका भी एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो बनाया जाता है, उसके लिए हम यूसीएस निकालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड है ये एक्चुअली में। हाँ, एक मैं और जिक्र कर रहा था उसका, रिलेटिव मेथड का। व्हाट इज रिलेटिव मेथड? तो पहले जमाने में क्या होता था, जब कोई मशीनें नहीं थी, तो बिनॉक्सी के टाइम, उस टाइम पे रिलेटिव मेथड होता था। वी यूज्ड टू हैव दिस हैमर्स, वी यूज्ड टू ट्राई टू सी दैट वो साउंड कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम मारते नहीं, कई बार बेसॉल्ट पे मारूंगा तो ऐसे टन की आवाज आती थी, तो हम उस टाइम के जो जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट, दे यूज्ड टू डू रिलेटिव मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ, यूनिएक्सियल स्ट्रेंथ, ओके। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स। सेकंड वन इज रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन जब हम आरएमआर निकालते हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट जनरली क्या रहता है कि हम लोग जब हम किसी भी स्लोप स्टेबिलिटी की स्टडी करते हैं तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना पैसा है या क्या है। तो अगर आप ड्रिलिंग करना चाहते हैं तब तो आरक्यूडी आप निकाल सकते हो इस मेथड से, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि सम ऑफ कोर पीसीज। ये वाली डायग्राम आप देखो, इसमें क्या है कि जितने भी कोर्स 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है उनको डिवाइड करा जाता है, कोर की पूरी लेंथ कितनी है, आपने कितना लंबा ड्रिल मारा है नीचे को, ठीक है। और उस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज में वैल्यू मिलती है आरक्यूडी की। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये पेपर पढ़ सकते हैं, डेरे का 1989। आज हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, मैं खाली सिर्फ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को बताऊंगा और उसकी एप्लीकेशन क्या है वो बताऊंगा। एक मोटिवेशनल आइडिया दे रहा हूँ आज आपको फिलहाल। तो आरक्यूडी जनरली जब आपके पास ड्रिलिंग के लिए नहीं है अमाउंट, तो आप क्या करते हो, आप सरफेस आरक्यूडी निकालते हो। कैसे? आपको पता है जॉइंट का डेटा कैसे लेना है। जॉइंट का डेटा ले लिया, उसकी स्पेसिंग देख लिया आपने, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट द, यू डू द इनवर्स ऑफ द स्पेसिंग एंड व्हाई डूइंग दैट यू कैलकुलेट द जॉइंट वॉल्यूम। जॉइंट वॉल्यूम आपने जब निकाल दिया तो जॉइंट वॉल्यूम से आपका आरक्यूडी निकालने का एक फार्मूला बनाया हुआ है साइंटिस्टों ने, 115 - 3.3 ऑफ जॉइंट वॉल्यूम। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जब आपके पास ड्रिलिंग का काम करने का नहीं है पैसा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और जनरली लोग ऐसे ही करते हैं यूज फिलहाल, एक्सेप्ट द बिग प्रोजेक्ट्स, ओके, लाइक टनल और डैम्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो स्पेसिंग के लिए मैंने आपको इस फिगर में दिखाता हूँ, आप इस जगह को देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देखो, जैसे ये अगर मैं मार्क करूं, ये वाला एक जॉइंट जा रहा है यहाँ से, ठीक है, सेम जॉइंट ऐसे को जा रहा है, ऐसे को जा रहा है, तो इनके बीच की जो ये स्पेसिंग होगी इसको हम बोलेंगे जॉइंट स्पेसिंग, ठीक है। ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, आपको प्रिसाइजली करनी पड़ती है फील्ड में, ये जैसे ये यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, बहुत सारी जगहों का हमारे पास डेटा है स्पेसिंग का, ठीक है। तो हमने उस स्पेसिंग को डिवाइड कर दिया। अगर वेरी वाइड है, 2 मीटर से ज्यादा स्पेसिंग है, तो उसकी रेटिंग 20 दे दी, मतलब आरएमआर हाई है उसका, ठीक है।
वाइड है 0.6 से 2 मीटर। इस तरीके से हमने क्लासीफाई कर दिया। और जब मिलीमीटर स्केल की वो है स्पेसिंग, तो उसके लिए ये वाला टेबल यूज होगा, जितनी छोटी स्पेसिंग है मिलीमीटर में, है ना, तो ये वाला टेबल यूज किया जाएगा। तो इसको हमने फैक्टर को इस तरीके से डिवाइड करके इसमें भी डाल दिया है, ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर्स। चौथा फैक्टर है कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। जैसे मैंने शुरू में वो क्वेश्चन पूछे थे ना इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रेंथ क्या होती है जॉइंट की, तो दैट इज गवर्नड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल परसिस्टेंस। उसकी परसिस्टेंस कितनी है, परसिस्टेंस होता है लेंथ कितनी है उसकी जॉइंट की। जैसे आप इस फिगर में देखोगे ना, ये परसिस्टेंस ही है एक्चुअली में। अगर मैं इस वाले प्लेन की बात करूँ ना जॉइंट प्लेन, अगर इसको जॉइंट प्लेन ले लूँ तो इस जॉइंट प्लेन की पूरी लेंथ कितनी है रॉक टू रॉक में, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, है ना। इस तरीके से यहाँ पर भी है, ऐसे लेते हैं इसको। और ये परसिस्टेंस हो गई आपको, ये भी लेनी पड़ती है आपको। दूसरा अपर्चर होता है, उसके बीच का जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो ये वाला गैप है बीच में, देखो मिलीमीटर में। यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग स्केल की कितना अपर्चर आ चुका है, ये जो ब्लॉक्स है इसके बने हुए रॉक मास के, तो इसके बीच का जो अपर्चर है वो कितना है, वो भी निकालना पड़ेगा। तो अब उन सबको निकालने के बेस पे आपने फिर क्लासीफाई करना है कि अगर इतने से इतना है तो उसकी रेटिंग ये है, उसकी रेटिंग ये है। तो इस तरीके से आपने क्लासीफाई कर दिया अपर्चर को भी। एंड यू विल यूज रफनेस, अदर पैरामीटर। रफनेस कितनी रफनेस है उसकी, सिलिकॉन साइडेड है, स्मूथ है, रफ है, अंडुलेशंस है उसके बीच में, जैसे कई बार रिपल मार्क्स होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब कंसीडर की जाती है इसमें। और रफनेस को इन्होंने अलग से भी डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि ये जो है ना ये सब्जेक्टिव चीजें हैं। इसको लिए आपको बहुत अच्छे से आउटक्रॉप को स्टडी करना पड़ता है कि अगर वेरी रफ, अनवेदर्ड है, रॉक टाइट है, डिसकंटिन्यूस है, नो सेपरेशन है, तो आपकी रेटिंग ये रहेगी। रफ है, स्लाइटली वेदर्ड है, वॉल रॉक सरफेस सेपरेशन है। तो ये आप पढ़ सकते हो इन चीजों को जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जितना ज्यादा आप काम करोगे फील्ड में, तभी आपको ये अच्छे से आपकी आई ट्रेन होगी इस चीज में कि आपको एक्चुअली में पर्टिकुलर कौन सा नंबर डालना है। इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की एक एक्चुअली में लिमिटेशन भी है कि वो जो बंदा काम कर रहा है फील्ड में उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है वो बंदा गलत भी डेटा ले रहा हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो उसमें, उसको लेने में नहीं आ रही हो, ठीक है। वो चीजें इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं, बट स्टिल इट इज वेरी वाइडली यूज्ड इंपेरिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। इसी तरीके से इन फीलिंग क्या है उसके बीच में, हार्ड फीलिंग्स है, हार्ड फीलिंग ग्रेटर देन साइज के हिसाब से इन्होंने क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। और वेदरिंग है, स्लाइटली वेदर्ड है, मॉडरेटली वेदर्ड है, हाईली वेदर्ड है। तो यू कैन रीड ऑल दिस कि इनको कैसे यूज करते हैं, है ना। वो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स है, वो भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन बन जाता है। फिलहाल हम सिर्फ जनरल व्यू ले रहे हैं इसका। और पांचों पैरामीटर है, ग्राउंड वाटर की कंडीशंस क्या है, ये भी इन्होंने देखा कि अगर कंप्लीटली ड्राई है तो उसकी हाई रेटिंग दे दो, डैम्प जैसा है तो 10, वेट ड्रिपिंग फ्लो कर रहा है तो 0, ठीक है। ये सारी पैरामीटर्स की इन्होंने डिफाइन कर दिया रीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, और 6 पैरामीटर है ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्चुअली जॉइंट्स की। जब हम बात करते हैं, मैं खास करके ज्यादा काम जॉइंट्स के ऊपर ही करता हूँ, तो इसका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगता है कि आपको एक्चुअली में समझना ये है कि जो जॉइंट्स है ना उनकी उनकी एक्चुअली में वेरिएशन कैसे हो रही है ओरिएंटेशन की, उनकी डिप डायरेक्शन क्या है, उनकी जो स्लोप एंगल है और जो जॉइंट है उसके बीच के उनके बीच में क्या रिलेशन है आपस के बीच में। इवन आप डिप डायरेक्शन को ले लो या फिर डिप अमाउंट को ले लो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली इसको गवर्न करती है हमारे रॉक मास को, ठीक है। तो इसलिए इस पैरामीटर को अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो अपने आप में 1 घंटा लगेगा, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है ये। बट फॉर द टाइमिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है इसमें। बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर जब बिनियोफ्स्की ने 1979 में या 89 में दिया था, तो ही डेवलप्ड आरएमआर बेसिकली फॉर रॉक मास रेटिंग फॉर दिस टनलिंग। बट इन द कमिंग ईयर्स इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर स्लोप्स आल्सो, आउटक्रॉप्स, ठीक है। तो वो बाद में जब एक्चुअली में हुआ क्या कि आरएमआर को भी फर्दर मॉडिफाई किया गया है। रोमाना एक साइंटिस्ट था, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया 1985 में, जिसको यूज किया जाता है अब स्लोप मास रेटिंग के लिए। तो स्लोप मास रेटिंग अपने आप में एक अलग सा टॉपिक बन जाता है जिसमें जॉइंट्स की ही बात की जाती है जनरली, और मेरा भी ज्यादातर काम उसी के ऊपर रहा है अभी तक एमएससी में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बट दैट इज कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक विच इज ऑब्वियसली कनेक्टेड टू आरएमआर, but that is in itself a very big topic to discuss. Okay, so we will understand here what is strike perpendicular to tunnel axis, क्योंकि टनल्स के लिए दिया था ना, तो टनल्स की ही बातें करेगा आरएमआर में बिनियोफ्स्की यहाँ पे। तो अगर ड्राइव विद डिप का मतलब है अगर आपका टनल का एक्सिस ये है, इधर को बन रहा है ऐसे को, तो अगर आपका टनल का एक्सिस इधर को है और ठीक है,
और आपका टनल का एक्सिस इधर को है, तो स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू टनल एक्सिस। तो जो जॉइंट्स है ना, ये वाले जॉइंट्स, इनकी जॉइंट्स की स्ट्राइक क्या है, ऐसे को है, तो परपेंडिकुलर हो गई टनल की। तो ये पहला क्लासिफिकेशन ये बोल रहा है कि ये वाला, अगर इस तरह का केस मिल रहा है आपको कहीं पे फील्ड में, तो वहां पे क्या होगा कि आपकी जॉइंट्स की डिपिंग जो है वो अंदर को है, रनिंग डायरेक्शन में। तो कहता है यहाँ पे जब डिप हाई है 45 डिग्री से 90 डिग्री तक जॉइंट्स का, तो कहता है बहुत फेवरेबल कंडीशन है वो, क्योंकि आप यहाँ से कटिंग शुरू कर दोगे तो ऊपर आप पहले रॉक बोल्टिंग कर सकते हो या कुछ कर सकते हो ताकि सेफ्टी हो जाए, है ना, तो वो इजी मेथड हो जाएगा। तो इसने क्लासीफाई दे दिया कि 20 से 45 होगा तो वो फेवरेबल होगा या ऐसे फेयर होगा। अगर आप अगेंस्ट कर रहे हो, जॉइंट्स ऐसे को डिप कर रहे हैं, तो इसमें डिफाइन करता है कि इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अनफेवरेबल, फेयर, सेम क्लासिफिकेशन है। दूसरा इसने बताया कि अगर आपका स्ट्राइक पैरेलल टू टनल एक्सिस है, ठीक है, आपके जॉइंट्स भी जो है उनकी जो स्ट्राइक है वो पैरेलल है टनल एक्सिस की तरह, ऐसे ही इसी तरह की डायरेक्शन में। तो इसमें क्या रहता है कि अगर वो बहुत ज्यादा हाई डिप पे जॉइंट्स, आप खुद सोचो अगर जॉइंट बिल्कुल डिप कर रहे हैं वर्टिकली, तो वो करने की कोशिश करेंगे इधर, क्योंकि स्ट्राइक पैरेलल है, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी चीजें जो एकदम से समझ में नहीं आती है, बट जब आप 3D डायग्राम की तो आपको बड़ी क्लियरली समझ में आएंगी ये चीजें, और आप कभी भी पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ जॉइंट ओरिएंटेशन ऑन डैम फाउंडेशन, तो डैम्स की बात करेंगे तो डैम्स की भी जब वो डैम की फाउंडेशन बनती है तो उसके बेस में जो ग्राउंड मटेरियल में जो रॉक मास है उसका जो जॉइंट का डायरेक्शन वो ऐसा है या फिर अपोजिट अपस्ट्रीम में है, तो उसमें पानी जाएगा अंदर, तो वो ऊपर को फोर्स लगाएगा, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम आएगी। ये बड़ी सिंपल सी चीजें जो आप पढ़ सकते हो किसी भी बुक में, ठीक है। तो ये फिलहाल ओरिएंटेशन में इतनी बात की इन लोगों ने आरएमआर में, जो ज्यादा यूज नहीं होती है वैसे, क्योंकि जब स्लोप मास रेटिंग की बात करते हैं तो उसमें हम लोग जॉइंट्स को ना बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन करते हैं और अलग सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो वो वहां पर उसमें बात की जाएगी, वो किसी और दिन उस पर भी लेक्चर दिया जा सकता है। तो जब हमने ये 6 पैरामीटर्स निकाल दिया आरएमआर यूसीएस के अंदर, यूसीएस आ गया आरक्यूडी, स्पेसिंग, कंडीशन, ग्राउंड वाटर, ओरिएंटेशन, एवरीथिंग, सो वी गेट ए पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, हमारे पास चार्ट बन गया। अगर तो आपकी वैल्यू 81 से 100 है ऐसे, ठीक है, तो उसकी क्लासिफिकेशन वेरी गुड है, क्योंकि आर का आरएमआर हाई है, रॉक मास की क्वालिटी हाई है आपकी, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल जगह बनेगी वहां पे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है रॉक मास में, आप वहां पर काम कर सकते हो। और अब उन्होंने क्या किया साइंटिस्टों ने, उन्होंने देखा जब उनके पास 60 साल का डाटा था, तो उन्होंने देखा जिसका आरएमआर का 81 से 100 था, तो उसकी जो उन्होंने देखी स्टैंड अप टाइम कितना था उसका, ये खास करके टनल की बात करते हैं यहाँ पे, तो 10 साल तक का उसका स्टैंडिंग टाइम इन्होंने निकाला हुआ है एवरेज कोरिलेशन के बेस पे। ये सारा इंपीरिकली हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ डेटा बेस्ड है ये, जितना भी ज्यादा डेटा था उसके बेस पे ये सारा हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो ये दो चीजें रहने देते हैं। अलाउेबल बियरिंग प्रेशर, ओके, तो टनल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कितनी ले सकता है, तो जिसका आरएमआर हाई है तो उसको वो इतना प्रेशर ले सकता है, इस यूनिट का प्रेशर ले सकता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि आरएमआर जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है ना, उसकी क्लासिफिकेशन वेरी गुड, फेयर, पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके से इनको डिफाइन कर रहे हैं। और देखो टाइम भी डिफाइन कर रहे हैं कि इतने टाइम तक ही स्टेबल रहेगा, और उसका बेयरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम है। तो बेसिकली ये था वो मेन चीज, आरएमआर को बनाने का मतलब ये था कि अगर आपने फेस कट करना है तो उसका स्टैंड अप टाइम कितना होगा, है ना, वो कब तक स्टेबल रहेगा, अगर आपने उसका आरएमआर निकाला, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इंपेरिकली पता चल जाती है इस सिंपल से टेबल में। तो कोई भी बंदा इस टेबल को यूज कर सकता है और किसी जगह पे काम कर सकता है, तो उसको जल्दी से पता चल जाएगा वो स्लोप कितना स्टेबल है, या फिर है ना उसकी स्टैंड अप टाइम कितना ले सकता है वो, अगर वो टनल का फेस है तो उसके बारे में, स्लोप का है तो उसके बारे में। तो इसकी एप्लीकेशंस जनरली सी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। डैम की फाउंडेशंस की मैंने बात की थी कि जॉइंट्स की जैसी डायरेक्शन है उसके बेस पे यूज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको यूज करोगे टनलिंग में, है ना, रॉक स्लोप इंजीनियरिंग में, स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस में। आप देखोगे हिमालयाज में रोड बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, टनलिंग हो रही है, तो वहां पे आरएमआर सबसे पहले निकाला जाता है। रॉक मास क्लासिफिकेशन में और भी बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे एक क्यू सिस्टम होता है, वो भी निकाला जाता है, वो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया वो हिस्ट्री में शुरू वाले स्लाइड में कि बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है दैट यू कैन एक्सेस इजीली, फ्रीली अवेलेबल है सारा कुछ, ठीक है, वो वहां से भी पढ़ सकते हो आप, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। लैंडस्लाइड की स्टडीज में किया जाता है, मैं खास करके लैंडस्लाइड में काम किया अभी तक, या ऐसा बोल सकते हो रॉक स्लोप इंजीनियरिंग में, तो इन दोनों टॉपिक में मैंने काम किया। तो लैंडस्लाइड में भी हम लोग आरएमआर निकालते हैं, फिर हम स्लो मास रेटिंग निकालते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उस आउटक्रॉप को समझने की, उस स्लोप को समझने की पहले कि कितने उसकी आरएमआर वैल्यू है, एसएमआर कितनी है, तो उसके बेस पे हम लोग उसके रेमेडियल मेजर्स बताते हैं गवर्नमेंट्स को या किसी भी बंदे को, या हमारे खुद की रिसर्च भी अगर हो रही किसी जगह पे, तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं।
अच्छा, हिमालयस में क्या होता है कि जो वैली ब्रिज बनते हैं, वैली ब्रिज दूसरे वाले वैली ब्रिज होते हैं जो पीडब्ल्यूडी या बॉर्डर फोर्स वाले बनाते हैं, जो लोहे के ब्रिज होते हैं, तो वो ना प्रॉपर हार्ड रॉक पे बनते हैं जनरली। तो हार्ड रॉक जहां पर आएगी वहां पे जियोलॉजिस्ट आएगा, खास करके इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट आता है। तो वो इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट ही बताएगा पहले उसकी स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग, फाउंडेशन कितनी, फाउंडेशन में कितना दम है उस स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो वहां पे काम उसका आता है। माइनिंग में आप देखोगे अंडरग्राउंड माइनिंग हो रही है कहीं पर भी, अगर मिनरल्स की हो रही है या कुछ भी हो रहा है, और डिपॉजिट्स की, तो वहां पर भी माइनिंग में बहुत ज्यादा यूज है इसका रॉक मास रेटिंग का। क्योंकि आपको रॉक मास की स्ट्रेंथ समझनी है। आप ऐसे भी ड्रिल करके या फिर अंदर डिग करके जा रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने हैंडल कर सकता है। क्योंकि सिविल इंजीनियर बाद में ही आएगा, वो जब जियोलॉजिस्ट उसको अपनी बताएगा कि भाई इस रॉक की इतनी स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से ही वो स्ट्रेंथ के लिए बीम्स लगाएगा या जो भी अपना काम करेगा फर्दर सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो वहां पर इसकी एप्लीकेशन है। रोड कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया आपको। रेलवे कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है हिमालयस में, देखो इतना काम चल रहा है, अभी रेलवे बनेगा हिमालयस में। तो उसपे भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहता है वो डीपीआर जब रिपोर्ट बनेगी तो उसमें क्या होता है कि इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जो है वो मैपिंग करता है सबसे पहले पूरे एरिया की। जियोलॉजिकल मैपिंग नहीं होती है ये, इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल मैपिंग होती है, जो कम्प्लीटली अलग है, मतलब नॉट कम्प्लीटली बट इट इज वेरी डिफरेंट देन जियोलॉजिकल मैपिंग, because we have to take all type of structural data basically which govern the strength of the rock mass and other parameters. Okay, so रेलवे में बहुत ज्यादा यूज है इसका। और अंडरग्राउंड मेट्रो कंस्ट्रक्शन अगर नीचे वाले अर्बन एरियाज में हो रही है तो वहां भी इसका बहुत यूज है। ठीक है, वहां पर बहुत काम होता है। बॉम्बे में बन रही है, मुंबई में बन रही है, तो वहां पे टनलिंग एक्सपर्ट्स जाते हैं, वो अपना आरएमआर यूज करेंगे, क्यू सिस्टम करेंगे यूज। तो इस तरीके से बहुत सारे यूज है। ऑयल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। जब हम आरक्यूडी की बात करते हैं या ड्रिलिंग करनी है किसी जगह पे तो वहां का आरक्यूडी कितना है तो वो भी देखा जाता है वहां पे। तो देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो। ओके, सो आई थिंक ये रेफरेंसेस है इसके, विनियोव्स्की की बुक में आप देख सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो यही था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आपको कोई डाउट्स है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। रोहित। ओके, थैंक यू आरके। ओके, तो कोई किसी के डाउट्स हैं या कुछ भी है तो वो पूछ सकते हैं अभी, या इस किसी और चीज से रिलेटेड भी अगर कोई डाउट्स है। आई गेस अभी तो सारे जूनियर्स ही अच्छा नहीं अटेंड किया है तो इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बट ये एक तरफ मतलब उन्हें आइडिया जनरल हो जाए कि वो रिसर्च के लिए क्या टॉपिक्स ले सकते हैं और कैसे मतलब रिसर्च कर सकते हैं। तो मेन मोटिव ओके, हमारा यही है इन हाँ हाँ, सेमिनार्स रखने का। ओके अच्छा ठीक है। तो हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर रिसर्च से रिलेटेड या कुछ भी अगर पूछना हो तो मतलब पूछ सकते हैं, मतलब वही मैं बोल रहा हूँ। So I Okay. guess nobody has any question. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आई थिंक मैंने बोर नहीं किया, आई होप आप लोगों नहीं नहीं। को। क्योंकि कई बार होता है ना समझ नहीं आता। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो बीएससी में होंगे उन लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे या पता नहीं, अगर नहीं भी है तो एक्सक्यूज मी कोई बात। सर। ओके, यस यस, हु इज दिस सर स्पीकिंग? आपने सर दिस इज श्रेया श्री फ्रॉम बीएससी थर्ड। ओह यस, ओके, हाँ हाँ, बोलो श्रेया। सर आपने जो स्पेसिंग बिटवीन जॉइंटेड रॉक मास का जो टॉपिक आपने बताया था अभी, ओके, उसमें आपने जो इफेक्ट बताया था कि जो टनलिंग जब हम करते हैं तो सर वो जो आप स्ट्राइक का कुछ बता रहे थे उसमें कि अगर स्ट्राइक पैरेलल होगी तो उसको ज़्यादा फेवरेबल मानेंगे, तो हाँ हाँ वो हाँ कंसेप्ट आप बता सकते हो दोबारा? हाँ, मैं बता सकता हूँ उसके दोबारा से, एक सेकंड। ये स्लाइड दिख रहा है ना मेरा? यस सर। जी विजिबल, ओके। देखो पहली बात ये कि ये जो जब विनियोव्स्की ने इसको टनलिंग के लिए दिया था ना, तो इसको 1989 में विनियोव्स्की ने टनलिंग के लिए दिया था शुरू में, इस वाले को। इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। पहले हम बात करेंगे स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू टनल एक्सिस। ठीक है, तो आपकी टनल ये जा रही है इधर को, या आप ऐसे सोच लो कि टनल की एक्सिस है।
और जो आपके जॉइंट्स है ना, वो जॉइंट्स ऐसे हैं, ठीक है। अब इस वाले जॉइंट की स्ट्राइक क्या होगी, आप मेरे को बताओ जरा। इसकी स्ट्राइक जो है वो एक स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हॉरिजॉन्टल अगर उसको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो इंटरसेक्शन कर रहा है किसी बेडिंग प्लेन की, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो वो लाइन ये आएगी यहाँ पर ऐसे को, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया ना टनल एक्सिस के। ये इस लाइन का मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को, कि स्ट्राइक परपेंडिकुलर टू टनल एक्सिस। जो जॉइंट है उसकी जो स्ट्राइक है वो टनल एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर पाई जा रही है किसी टनल के दौरान, तो उसके अंदर के जो तब जो उसके अंदर की ये क्लासिफिकेशन हम तब हम पढ़ेंगे इन चीजों को। यहाँ पे ये वो बात कर रहा है कि तब हम इनके अंदर जाएंगे। उसने ब्रॉड क्लासिफिकेशन यहाँ पहले ही दे दी। अगर तो स्ट्राइक पैरेलल है, दूसरे केस में जब स्ट्राइक पैरेलल है, जब स्ट्राइक पैरेलल होगी तो उसमें जॉइंट की जो स्ट्राइक है वो पैरेलल है। अब देखो ये ऐसे मान लो आप इसको, जॉइंट भी आपका इधर को डिप कर रहा है, ऐसे को अंदर को डिप कर रहा है इस दिशा में। अब मैं इस जॉइंट की अगर स्ट्राइक बनाऊंगा तो वो ऐसे हो जाएगी, है ना। तो जो टनल की एक्सिस है वो भी ऐसे है, तो टनल की एक्सिस और स्ट्राइक वो पैरेलल हो गए। तो हमारी ब्रॉड ये वाली जो क्लासिफिकेशन ये समझ में आ गई हमें। क्लियर हो रहा है आपको ये चीज? यस सर। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ गई तब हमने अंदर जाना है। फिर अब हमने देखना है कि डिप कितना है उनका जॉइंट्स का। अगर डिप 45 डिग्री टू 90 डिग्री है तो वो बिनॉफ्स्की कह रहा है, मतलब आपको बिनॉफ्स्की का पेपर पढ़ना पड़ेगा कि वो क्यों कह रहा है इस चीज के बारे में। या फिर मैं ये समझा सकता हूँ कि उस बिनॉफ्स्की के पास क्या था, बहुत सारा डेटा था। उसने देखा कि जब भी डिप की डायरेक्शन जॉइंट की जो डिप अमाउंट है ना वो 45 से 90 है, तो वो कह रहा है उस डेटाबेस के हिसाब से कि टनल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उसने बोल दिया वेरी फेवरेबल। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो जब डिप 20 टू 45 है तो वो कह रहा है फेवरेबल है ना। यहाँ पर वो फेयर कह रहा है इस चीज को। ये इस तरीके से इसने डिफाइन किया है इन चीजों को। तो इसके लिए बस ये जो पिक्चर थी ना इसको समझना जरूरी था। आई थिंक ये अब आपको क्लियर होगी ये डायग्राम, ये समझ में आ गई आपको ये चीज? यस सर। बस यही इसने इसके पास डेटा था। इसने डेटा में देखा कि जब जॉइंट्स की डिप इतनी होती है तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात, ये जॉइंट्स जो है ना ये इधर को भी डिप कर सकते हैं। तभी उसने बोला देखो ड्राइव विद डिप। विद डिप का मतलब है जब जॉइंट भी वहीं डिप कर रहे हैं और ड्राइव भी उधर ही है। पहला वाला केस ये आपका इधर है, ड्राइव अगेंस्ट डिप मतलब आपको इधर आना पड़ेगा जब जॉइंट्स ऐसे हैं। समझ गए? इस तरीके से है ये। और पैरेलल में भी आप ड्रॉ कर लो इस चीज को। क्लियर हो गया आपको ये? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके। इसके अलावा अगर चलो ये तो रॉकमास रेटिंग सिस्टम था जो इंजीनियरिंग जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्यू से अगर कोई बंदा फ्यूचर में सोच रहा काम करने का, तो आई थिंक उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ऐसे शुरुआत कर ले यहाँ से, क्योंकि ये ना बड़ी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो बिल्ड हो चुके हैं अब तक। तो अगर आपको इंजीनियरिंग जियोलॉजी में फर्दर जाना है तो मैंने ये कुछ वो भी लगाए हुए थे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में किसी ने कुछ करना है ना तो वो हकॉन फसॉन की वेबसाइट पे जा सकता है, उसकी बुक भी पढ़ लेना स्ट्रक्चरल जियोलॉजी की। काफी एक्सप्लेनेशंस हैं और अच्छी डायग्राम्स हैं और इनके टूल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और खास करके अगर टनलिंग और इसमें जाना है तो मनोज वर्मन की अपनी एक वेबसाइट है सर की। इस वेबसाइट में क्या होता है कि कोर्सेज चले रहते हैं हमेशा, ठीक है। अभी भी एक कोर्सेज है, ये कोर्स है 21 तारीख से जो मैं भी कर रहा हूँ अभी रॉक इंजीनियरिंग में। तो अगर आपको कोर्स करना है कोई, ठीक है, तो वो आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। इनका अपना फीस रहता है जो भी, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा, जो बच्चे हैं अभी बीएससी वाले ना, आप ये भी समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि कंटूर्स को समझना मुश्किल होता है, कंटूर क्या बोल रहा है ना। तो ये विजिबल जियोलॉजी की ऐप है एक, ठीक है। विजिबल जियोलॉजी की ऐप है, इन्होंने क्या किया है एक वेबसाइट बनाई हुई है। आप गूगल पे लिखोगे ना विजिबल जियोलॉजी तो आपको एक ऐसे बन के मिलेगा, ठीक है। उसमें आप जाओगे तो आप कुछ भी, आप क्या करोगे, अपने जियोलॉजिकल बेड्स बना सकते हो, उनको टिल्ट कर सकते हो। तो होता क्या 3D में ना हमें कई बार चीजें समझ नहीं आती। जैसे आपका डाउट था ना, सॉरी ये स्ट्राइक वाला जो डाउट था, ये इसलिए आ रहा होगा कहीं ना कहीं क्योंकि 3D इमेजिनेशन नहीं हो पाती हम लोगों की, क्योंकि हमें सिर्फ बुक्स में पढ़ते हैं ना ब्लॉक्स तो डायग्राम्स, तो वो हमें क्लियरली फील्ड में जब 3D में देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है ये विजिबल जियोलॉजी। आप लोग इस पे जाओ, आज ही जाओ, अभी इसमें देखो क्या होता है। इसके अंदर आप जियोलॉजिकल बेड्स को टिल्ट कर सकते हो, फोल्ड बना सकते हो खुद से, फोल्ड में पर्टिकुलर एंगल दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टोपोग्राफी ऐड कर सकते हो। जब आप टोपोग्राफी ऐड करते हो तो फिर जो कंटूर्स हैं, ठीक है, एलिवेशन कंटूर्स, उसके साथ जियोलॉजिकल के जो बेड्स के जो अपने जियोलॉजिकल बेड के जो कंटूर है वो कैसे मैच करते हैं। तो जो जितने भी रूल्स होते हैं ना ये स्टडी करने के, जो रिवर्स आ रही है, रूल ऑफ वीज, जो सारी वो सारे जितना भी है वो सब आपको समझ में आ जाएगा आराम से अगर आप इस वेबसाइट में जाओगे तो। और एक मैं ये बताता हूँ लिंक आपको, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अलाबामा का, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको सारे स्ट्रक्चरल जियोलॉजिकल टूल्स मिलेंगे बने हुए। जैसे कि हम वो नहीं निकाल रहे हैं
काइनेमेटिक एनालिसिस करते हो आप, या इंटरसेक्शन निकालोगे तो आप प्रॉपर स्टीरियो नेट बनाते हो। लेकिन वो वाली चीज ना इसमें भी अवेलेबल है विजिबल जियोलॉजी में, बट यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर मैं इसलिए जाने को बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है आपको प्रॉपर, वो बना के एक्सेल शीट पे, और या फिर मैटलैब के प्रोग्राम्स मिलेंगे आपको इसमें बने हुए। दूसरी आप इसमें भी जा सकते हो रिकैलमेंटर की वेबसाइट पे, ये भी एक बहुत बढ़िया वेबसाइट है। इसमें सारे मैटलैब की स्क्रिप्ट्स पड़ी हुई है, जितने भी टूल्स यूज होते हैं ना स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, इंटरसेक्शन निकालनी है बेड्स की, अपरेंट डिप निकालनी है, जो हम थियोरेटिकली करते हैं हाथ से, वो सारी चीजें आपको अब प्रोग्रामिंग में भी आनी चाहिए करनी। क्योंकि अब जब डाटा बढ़ता है ना, जब टनलिंग में जाते हो तो आपको हजारों के हिसाब से डेटा मिलता है, तो आप उसको हाथ से नहीं बनाओगे, तो आपको सॉफ्टवेयर आने चाहिए कैसे फटाफट से इसको ऑटोमेटिकली कराना है काम को। तो इसलिए आपको प्रोग्रामिंग की कुछ चीजें मतलब पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें इसमें डाल दी थी। आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, और इसके अलावा वो क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रोहित, Thank you, Raj Kiran. okay, I thank you guess now we can end this session. okay, So ठीक, thank you once again. okay, thank you. Okay. Thank you team also, Ocean, Manu Oh and yeah, all. yes, I want to mention Rohit, thank you Manvi and all other members of APG who has arranged this lecture. ठीक है, शुरू में डिले हो गया तो उसके लिए भी मैं सॉरी चाहता हूँ सबसे। एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और मेरा लैपटॉप इसी टाइम पे खराब हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था शुरू में, तो मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी। चलो थैंक यू, ओके, थैंक यू। चल ठीक है, ओके, बाय ऑल।